میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ اور ہم حسین کے غلام، ہم امام حسین کے دیوانے بس اتنا کہتے ہیں، خوشی حسین کی خاطر ہے غم حسین کے نام، خوشی حسین کی خاطر ہے غم حسین کے نام، یہ جو حیات ہے رکھتے ہیں ہم حسین کے نام۔ آج دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوست کے لیے آدھی رات بھی تیار رہتا ہے، دوست آواز دے گا سب کو چھوڑ کر فوراً چلا جائے گا، دوست کی آواز پر لبیک کہے گا۔ دنیا کے اندر ہمارے دوستانے، ہماری یاریاں، ہمارے تعلقات، ہماری دوستی، ہمارے دوست کیا کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کا حال یہ کہ مثال دی جاتی ہے کہ آستین میں سانپ پال لیا۔ آج کی دوستیاں اتنی کمزور کہ آج کا دوست کبھی بھی دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ آج کی دوستی یہ ہے کہ دوست برائیوں میں لگا دیتا ہے، نشہ کرنے میں لگا دیتا ہے، برے کاموں میں لگا دیتا ہے، زناکاریوں کے رستے دکھا دیتا ہے۔ کیسا دوستی کا معیار آج بدل گیا، دوستی کو کتنا اوچھا، کتنا ننگا، کتنا غلط ثابت کر دیا لوگوں نے۔ مگر آؤ لوگوں میں بتاتا ہوں دوستی کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہو تو دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ دوستی دیکھنی ہے میرے آقا کے دوستوں کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دوست جناب حضرت صدیق اکبر، 4 یاروں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پہلے میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے یار جناب حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے یار جناب حضرت عثمان ذو النورین، اور چوتھے یار شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار۔ یہ یاریاں ہیں، یہ محبتیں ہیں جنہوں نے محبت میں اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر دیا، اپنے آقا پر اپنی زندگیاں حضور کے لیے وقف کر دی۔ یہ دوستی کا معیار ہے۔ مگر سنو، امام حسین کی بھی دوستی ہوئی ہے کسی سے۔ اے میرے عزیزو، آج اپنے بچوں کو دوستی کا اگر سبق سکھانا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے یہ بتانا ہے، تو امام حسین کی دوستی بتایا کرو۔ امام حسین نے کس سے دوستی کی، کیسے دوستی کی، کس نے دوستی کروائی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستی میں محبت نہ ہو تو دوستی کسی کام کی نہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کی بارگاہ میں، بچپن ہے میرے امام حسین کا، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن کے عالم میں میرے حضور کی بارگاہ میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ ایک انسان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی آغوش میں آپ کے نواسے امام حسین ہے، مگر دوسری طرف یہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس بچے کی ایک شکایت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے، جب حسین چلتے ہیں، حسین کہیں پہ چلتے ہیں تو یہ بچہ حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھاتا ہے، اس مٹی کو اپنے چہرے پہ لگاتا ہے، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، اے بچے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات حق ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، جی حضور سچ ہے، جب حسین چلتے ہیں، جب حسین باہر نکلتے ہیں، میں ان کے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہوں، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا وہ بچہ، یا رسول اللہ یہ تو محبت کی بات ہے، اور محبت نہیں، میں تو حسین سے عشق کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ جو حسین آپ کا اتنا پیارا، اتنا لاڈلا نواسا ہے، حسین کی عظمت اس قدر بلند و بالا ہے، تو میں حسین کے قدموں کی مٹی اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں، اپنے سر پہ لگاتا ہوں کہ حسین کے صدقے اللہ میری بھی عزتوں کو دوبالا کر دے۔ یہ محبت ہے حضور میری۔ میرے حضور نے اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا بچے ذرا قریب آ جا۔ بچہ اٹھا نبی کی بارگاہ میں، نبی کے قریب جانے لگا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہیں،
मेरे आका के करीब वो बच्चा आ रहा है। मेरे आका ने यूं बाजू खोल दिए, हाथ खोल दिए, बच्चा हुजूर की बारगाह में आया। मेरे आका ने सीने से लगा लिया, हुजूर ने सीने से लगाया। मेरे आका ने फरमाया तू मेरे हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है, तू मेरे हुसैन से इतना प्यार करता है, ओ बच्चे खुश नसीब है कि तुझे मेरे हुसैन की मोहब्बत मिली है, तू बड़ा खुश नसीब है कि तुझे मेरे हुसैन से प्यार मिला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने हुसैन का हाथ पकड़ा, उस बच्चे का हाथ पकड़ा, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए और मेरे आका ने फरमाया ऐ बच्चों सुनो, तुम्हारे हाथ मैंने तुम्हारे एक दूसरे के हाथ में दे दिए हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं ऐ परवरदिगार, मैंने दोस्ती इनकी शुरू की है, या अल्लाह यारी मैंने लगाई है, परवरदिगार तू इनकी इस दोस्ती को इस्तिकामत अता कर दे। मेरे आका ने फरमाया ऐ बच्चों हाथ हाथ में मैंने दे दिए, यारी मैंने तुम्हारी लगा दी, अब निभाना तुम्हारा काम है। आखिरी दम तक हाथ हाथ में रहने देना, आखिरी दम तक दोनों दोस्ती को बरकरार रखना। हुजूर ने दोस्ती करवा दी। आज माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा इस बात को लेकर फिक्रमंद होते हैं कि इसके दोस्त गलत तो नहीं है, मगर वो कैसा दोस्त था कि मेरे हुजूर ने हाथ में हाथ दे के कहा था हुसैन ये तुम्हारा दोस्त है। ऐ लोगों, वो बच्चा जिससे हुजूर ने दोस्ती कराई वो कोई आम बच्चा नहीं था। तारीख में जब उसका नाम पढ़ेंगे वो बच्चा कोई और नहीं था, वो मेरे इमाम हुसैन के रफीक व शफीक जनाब हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर आका ने दोस्ती करवाई है। हबीब इब्ने मज़ाहिर मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत का सिलसिला तादम मर्ग रहा है। ये मोहब्बत का सिलसिला उस वक्त तक रहा है जब तक शहादत का जाम पिया है। ये मोहब्बत का सिलसिला उसके बाद भी जारी और सारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब गौर करो कैसी मोहब्बत है, गौर करो कैसा प्यार है। यही हबीब इब्ने मज़ाहिर है। जब करबला का मारका है उस वक्त में इनकी उम्र जो है वो 78 साल है, मगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में 75 या 78 साल की उम्र में लाठी पकड़ के भी हुसैन के साथ करबला में पहुंच गए और दोस्ती का हक अदा किया है। जब ये सारे हालात बने सन 60 हिजरी के अंदर, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, यजीद तख्त नशीन हुआ। मदीने के अंदर जो गवर्नर था उसके पास में जब पैगाम आ गया कि बैत लो इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया। हालात ऐसे बने कि मदीना छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे हुसैन नबी के नवासे इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर मदीना शहर, वो मदीना जहां बचपन गुजरा, वो मदीना जहां नबी की आगोश में परवरिश पाई, वो मदीना जहां मुस्तफा का रोजा है, वो मदीना जिसके बारे में आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का खित्ता दुनिया की जमीन नहीं, ये तो जन्नत की जमीन है। दूसरे मकाम पर आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। हुजूर फरमाते मदीने की कोई एक गली नहीं है, खित्ता नहीं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो प्यारा शहर मदीना, इमाम हुसैन ने उस शहर को छोड़ा, लेकिन वहां से रुखसत होते वक्त में खत लिखा था हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। इमाम हुसैन ने खत में लिखा था ऐ मेरे दोस्त, हालात ऐसे बन गए मैं मदीना छोड़ रहा हूं। ऐ मेरे दोस्त मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं। अगर आज तुझे अपने दोस्त की याद आती हो, अगर दिल चाहे तो मेरे पास आ जाना, मक्के में मुझे मिलना। अगर दिल चाहे तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है हुसैन मक्का बाद में पहुंचे हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर पहले पहुंच गए। इसे दोस्ती कहते हैं, इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और फिर जो हुजूर के नवासों से मोहब्बत करे उसकी शान तो मुताद्दिद अहादीस में मेरे आका ने बयान फरमाई।
ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, वो किसी और हाल में नहीं मरेगा, वो इधर मरेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा, किसी और हालत में नहीं मरेगा, ईमान उसका सलामत होगा, मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा की दौलत अता फरमा देगा। तो कोई प्यार तो करे हुसैन से, कोई प्यार तो करे अहले बैत से। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने मोहब्बत की और मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कैसी मोहब्बत की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन करबला के लिए रवाना हुए। ये 75 साल के बुजुर्ग जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हुसैन के साथ निकले। करबला के सफर में करबला पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, खैमे लगा दिए गए। इधर जब 9 मुहर्रम की रात आई, मेरे आका हुसैन ने सबको जमा कर लिया खैमे के अंदर और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे प्यारो, सुनो सुनो, तुम सारे के सारे मेरे साथ यहां आ गए, मगर सुनो आगे का हाल तुम जानते नहीं हो। आगे क्या होने वाला है। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग हरगिज नहीं मानने वाले, ये लोग जरूर अपनी तलवारें बुलंद करेंगे। एक काम करो, तुम्हारे किसी के बच्चे जवान हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हो, किसी को बेटियों की शादी करनी है, किसी को अपनी बीवियों की फिक्र है, सारे के सारे मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं चिराग बुझा रहा हूं, जिसे जाना है चला जाए। मैं नाराज नहीं होने वाला, नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि याद रखना जो चले भी जाएंगे मैं उनसे नाराज नहीं, बल्कि मैं कल कयामत के दिन नाना जान से अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, ये सारे के सारे मेरे रफीक शफीक मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे हैं, या रसूल अल्लाह मैं इनसे राजी हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया, कल कयामत के दिन मैं आपकी बख्शिश की सिफारिश करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने फरमाया, कल मैदान महशर, कल यौम हिसाब बख्शवाऊंगा, जिसे जाना है चला जाए। चराग बंद कर दिया गया, चराग बुझा दिया गया, थोड़ा वक्फा गुजरा है, उसके बाद में जब चराग को दोबारा जलाया गया, चराग रोशन किया गया, हुसैन ने क्या देखा, जितने मौजूद थे उतने अभी भी मौजूद हैं, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया है। एक फर्क महसूस किया, वो फर्क ये था कि जब चराग बुझाया था उस वक्त में किसी की आंख भीगी हुई नहीं थी, और जब चराग जलाया है हर इंसान की आंख में आंसू है, आंखें बरस रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम रुफ़क़ा अर्ज़ करने लगे, ए हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हमारी जवानियां किसी काम की नहीं, हमारे बीवी बच्चों के लिए अगर हम आपको छोड़ के चले गए, आज मुश्किल वक्त में आपको छोड़कर चले गए, कल मुस्तफा जान रहमत को यौम हिसाब क्या मुंह दिखाएंगे। कल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सवाल कर लिया, तुम मेरे बेटे को तन्हा छोड़ के चले गए थे, कौन सा मुंह दिखाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बूढ़ा इंसान हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर 75 साल की उम्र है, लाठी के सहारे से खड़े हुए इमाम पाक के करीब आए, दो जानू होकर इमाम पाक के कदमों में बैठ गए, अपनी तलवार हुसैन के कदमों पर रख दी, अर्ज करने लगे, ऐ मौला हुसैन, आप हमें जाने के लिए ना कहे, हम छोड़कर नहीं जाने वाले, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है। ऐ हुसैन, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे। हुसैन, हमें भेजो नहीं, हुसैन हमें यहाँ से वापस न भेजो, हमें लौटाओ नहीं, अगर हमें भेजना चाहते हो तो अपने हाथ से हमारी गर्दन काट दो, अपने हाथ से हमारा गला काट दो, मगर खुदारा जाने को ना कहो, हम जाएंगे नहीं हरगिज आपको छोड़कर, हम आपके लिए आए हैं, आपकी खातिर अपना हर कतरा खून का बहा देंगे, आपकी खातिर अपनी जानें लुटा देंगे। ये मोहब्बत है, ये जज्बे ईसार है, जो कल मुस्तफा के हाथ, मुस्तफा जान रहमत ने हाथ में हाथ देकर कल कहा था कि दोस्ती निभाना, हबीब इब्ने मज़ाहिर आज उस दोस्ती को निभा रहे हैं।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारी रात गिरिया उजारी में गुजारी, इबादत और रियाजत में गुजारी। दिल खोल कर इबादत की हुसैन अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, आजमाइश में तूने डाला है, इम्तिहान तू ले रहा है, मौला हिम्मत भी अता करना, ऐ मौला ताकत भी अता करना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जब मेरा जवान बेटा शहीद हो मुझे सब्र अता करना, जब मेरा बच्चा असगर शहीद हो मुझे सब्र की दौलत अता करना। ऐ मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ गो हूँ, कल मैंने नाना से वादा किया है, ऐ परवरदिगार मैंने बचपन में अपने नाना से वादा किया था, ऐ अल्लाह वादा वफा करने का वक्त आ गया है, उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। ऐ मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मुझे साबित कदम रखना। अल्लाह अकबर कबीरा, फजर का वक्त हो गया। मेरे इमाम ने अपने बड़े शहजादे अली अकबर को आवाज दी, जी हुजूर आ गए अली अकबर। जी बाबा फरमाइए। आपने फरमाया अली अकबर जाओ मैदान करबला में जाओ, बाहर निकलो और अजान पढ़ो, अल्लाह का नाम बुलंद कर दो। हजरत अली अकबर बाहर निकले, अजान पढ़ना शुरू किया, अजान मुकम्मल की है, लेकिन क्या देखा, एक बूढ़ी औरत खातून बैठी है, अपने दुपट्टे से मैदान करबला की जमीन को साफ कर रही है, उस रेगजार को साफ कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर ने कहा था, ऐ माँ तू कौन है, किस लिए इस वीराने में आई है, क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं मिला। हजरत अली अकबर वापस खैमे में आए, आकर अपने बाबा हुसैन को सारा माजरा सुना दिया, सारा किस्सा बयान कर दिया। मेरे मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा बाबा आंखों में आंसू किस लिए? इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे सुन ले, जो औरत तुझे मैदान कारजार में उस मैदान को साफ करते, उस जमीन को साफ करते हुए मिली, वो कोई और नहीं है, वो तेरी दादी है, मेरी माँ सैयदा फातिमा है। वो मेरी माँ है सैयदा, वो करबला की जमीन को साफ कर रही हैं कि मेरे बेटे की शहादत हो। मेरा बेटा जब घोड़े से नीचे जमीन पर आए तो उसके जिस्म पर ये रेगजार, ये पथरीली, ये बंजर जमीन, यहाँ के पत्थर कंकर उसके जिस्म में ना चुभे, उसे तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों गौर करो, जब सैयदा मैदान को साफ करती हो कि मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचे, कोई कंकर कोई पत्थर जिस्म में ना लगे, तो जब हुसैन के जिस्म में अतहर पर 72 जख्म लगे होंगे, तब सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। करबला का मैदान है, यौम आशूरा है। इमाम हुसैन की बारगाह में वही बूढ़ा हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर 75 साल की उम्र है, लाठी टेक कर जमीन पर चलते हैं, मगर आ गए मौला हुसैन की बारगाह में। हुसैन इजाजत चाहता हूं, मुझे इजाजत दो, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप न जाइए। कहने लगे हुसैन आज ये तौफीक, ये सादत मुझे अल्लाह की जानिब से मिली है, आज ये वक्त मेरी जिंदगी में आया है कि मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दोस्ती करवाई थी, उस दोस्ती का हक अदा कर दूं। खुदारा ये मौका मुझे नसीब हुआ है, ए हुसैन ये मौका मुझसे न छीनिएगा, ये मुझे तौफीक मिली है। ए हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला हुसैन ने इजाजत दी। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहने लगे, ए हुसैन बस तमन्ना इतनी है, अपने हाथ से तैयार कर दो, अपने हाथ से तलवार मेरे हाथ में दे दो और अपने हाथों से मुझे सवारी पे सवार कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देख गए, वो आंखों में आंसू आ गए, वो ईसार देखकर इमाम हुसैन ने तलवार दी हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथ में। आपने वो लाठी वो डंडा फेंक दिया, तलवार हाथ में उठाई है। अल्लाह अकबर। अब हुसैन ने घोड़े पर बैठा दिया, घोड़े पर बैठ गए हबीब इब्ने मज़ाहिर। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने दुआएं देकर रुखसत कर दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर चल पड़े मैदान की तरफ, मैदान कारजार की तरफ चल पड़े। इधर यजीदियों ने देखा, देखो देखो 75 साल का बूढ़ा आ रहा है, देखो देखो वो 78 साल का बूढ़ा आ रहा है, ये बूढ़ा क्या हमारा मुकाबला करेगा, ये बूढ़ा क्या हमसे जंग करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर किसी कहने वाले ने कहा, ऐ यजीदियों होश में आओ, इसे हुसैन ने तैयार करके भेजा है। हाथ में तलवार हुसैन ने दी है, घोड़े पर नवासे रसूल ने बिठाया
गया है, इसे इतना भी कमजोर न समझो। ये अगर तलवार चलाएगा तो याद रखना न जाने कितनों को ये जो है अपनी तलवार से काट कर फेंक देगा, इसे इतना आसान न समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यजीदी कहने लगा कि सुबह हमारे गिरोह से, हमारी जमात से, हमारी तरफ से एक इंसान चला गया उस तरफ, हुर को तोड़ लिया हुसैन ने, हुर उस तरफ चला गया, लेकिन ये बूढ़ा है, अगर हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं। उमर साहब कहने लगा, ए लोगो सुनो, ये हुसैन का तैयार किया हुआ है, ये हुसैन का दोस्त है, ये वो है जिसे हुसैन अपना रफीक व शफीक कहता है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसे अपनी तरफ लाना इतना आसान नहीं है। एक यजीदी कहने लगा, एक तरीका है, पानी अगर इसके सामने पेश कर दिया जाए तो पानी की वजह से ये हमारे पास आ सकता है, हमारी सफ में खड़ा हो सकता है, हमारे साथ शामिल हो सकता है। यजीदी कहने लगे, पीछे हट जा, अभी इसको हम जो है कत्ल कर देंगे, अभी इसको जो है हम काट कर रख देंगे। यजीदी आगे बढ़े हैं, मगर क्या देखा, इमाम हुसैन ने जो तलवार हबीब इब्न मज़ाहिर को हाथ में दी थी, वो तलवार चमकी है। वो तलवार ऐसी चमकी, न जाने कितने यजीदी एक वार के अंदर वासिले जहन्नम हुए। तलवार चली है, कई सारे यजीदियों को काट दिया। तारीख गवाह है, 42 या 45 एक मर्तबा जब वार किया, उसी लम्हे के अंदर इतने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। हबीब इब्न मज़ाहिर की ये शुजाअत और बहादुरी देखी, यजीदी पीछे हट गए। फिर वो पानी वाला कहने लगा, मैं ना कहता था कि तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसे तोड़ना है तो तलवार से नहीं तोड़ सकते, इसे पानी से तोड़ सकते हैं। वो पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा, कहने लगा, हबीब इब्न मज़ाहिर, तुमने 3 रोज से पानी नहीं पिया है, देखो मेरे हाथ में पानी का प्याला है, तलवार नीचे करो और पानी पी लो। हबीब इब्न मज़ाहिर ने तलवार को वापस नीचे कर लिया। तलवार को जैसे नीचे किया, म्यान में किया, वो यजीदी पीछे मुड़कर यजीदियों से, अपने साथ वालों से कहने लगा, देखो मैंने तुमसे कहा था पानी की बुनियाद पर तोड़ लूंगा, देखो तलवार नीचे कर ली है। अब ये यजीदी पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा है, कहने लगा, हबीब बेशक ये पानी तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम जो है इस पानी को पियो। ये आगे बढ़ रहा है। हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपना पैर निकाला घोड़े की रकाब के अंदर से। पैर निकालने के बाद में जैसे यजीदी करीब आया, आपने उस पानी के प्याले पर लात मारी, पानी का प्याला दूर जाकर गिरा। आपने फरमाया, ओ बदबख्त, तू समझता है भूख और प्यास की बुनियाद पर हम हुसैन से रिश्ता तोड़ लेंगे, हम हुसैन से नाता तोड़ लेंगे। याद रख ले, ये जिंदगी हुसैन के नाना के सदक़े में मिली है, ये जवानी बुढ़ापा सब कुछ जो मिला है हुसैन के नाना के सदक़े में मिला है, ये जान हुसैन के नाना के सदक़े में मिली है, तो हुसैन के कदमों पे ये जिंदगी कुर्बान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तलवार निकाली, वार किया, उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। कई और आए, यजीदियों ने प्लानिंग की कि एक साथ हमला कर दो, तीरों की बारिश कर दो। एक साथ हमला किया, तीरों की बारिश कर दी गई। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर के जिस्म पर जब बहुत ज्यादा जख्म लग गए, लड़ते लड़ते जब आप थक गए और थकन से चकनाचूर जिस्म हो गया, जब जख्मों ने आपको निढाल कर दिया, तो आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। जख्म है, तीर लगे हुए हैं, घोड़े से जमीन पर आए और पुकारने लगे, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला हुसैन को आवाज दी है, पुकारा है, कहां हो हुसैन, खबर लो, कहां हो हुसैन, खबर लो। मेरे आका हुसैन ने इतना सुना, दौड़े हुए अपने गुलाम की तरफ बढ़े, अपने दोस्त की तरफ बढ़े, हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ आगे बढ़े। इमाम हुसैन ने तलाश किया, किधर है हबीब? अल्लाह अकबर। हबीब ने पुकारा, ए हुसैन मैं इधर हूं, जहां अली अकबर ने अजान पड़ी थी, जहां तुम्हारी मां सैयदा ने जमीन को साफ किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने अपनी आगोश में हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर का सर लिया है, आगोश में रखा है और तीरों को तोड़ने लगे। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं, ए मेरे इमाम, तीरों को तोड़ो नहीं, अब तीर तोड़ के क्या फायदा, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, थोड़ी देर में मैं दारे फानी से रुखसत हो जाऊंगा, जामे शहादत मुझे मिलने वाला है, जामे शहादत नोश करने वाला हूं। ए हुसैन, बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर कहने लगे, ए हुसैन, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं शहीद हो जाऊं, मेरा सर अपनी आगोश में रखना और नाना के रोजे की तरफ तवज्जो करके नाना से इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, मैं हबीब से राजी हो गया, आप भी हबीब से राजी हो जाइए।
اللہ اکبر. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حبیب میں تم سے راضی ہوں, میں کل بھی راضی تھا, آج بھی راضی ہوں. کہنے لگے حضور اے مولا حسین ایک اور آرزو ہے میری, ایک اور التجا ہے میری. کیا ہے؟ کہا حضور کھڑے ہو جائے. امام حسین کھڑے ہو گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا اپنا قدم اٹھائیں. حسین نے جیسے اپنا قدم پیر اٹھایا, حبیب ابن مظاہر نے وہ قدم کے نیچے کی مٹی اٹھائی, اپنے چہرے پہ لگا لی, اپنی آنکھوں پہ لگا لی. کہنے لگے اب بیٹھ جائیے. میرے آقا حسین بیٹھ گئے. سر پھر بھی حسین کی آغوش میں ہے حبیب ابن مظاہر کا. کہنے لگے اے میرے مولا حسین, کل میں نے جو عمل کیا تھا, مصطفیٰ نے جس عمل کی بنیاد پر مجھے پسند کیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا, اے مولا حسین میں نے آج اسی عمل کو دہرایا ہے تاکہ آج یہ زمین کربلا گواہ ہو جائے کہ میں جس عمل کی بنیاد پر حسین کے قریب آیا تھا, دوستی ہوئی تھی, جس عمل کی بنیاد پر آقا نے مجھے پسند کیا تھا, وہ عمل میں آخری وقت بھی دہرا رہا ہوں تاکہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. اب امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے. آپ نے چاہا کہ اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کر دیں. جیسے میرے آقا امام حسین نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کرنا چاہا, آنکھیں بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, حبیب ابن مظاہر کہنے لگے اے میرے آقا حسین آنکھیں بند نہ کیجئے میری, میں جانتا ہوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, لیکن حسین میری تمنا یہ ہے, میری آرزو یہ ہے, میرا دم نکلے آخری لمحے تک, اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں, میں آپ کا دیدار کرتا رہوں اور آپ کی زیارت کرتے ہوئے میرے جسم سے جان نکل جائے. کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی ہے اور دوستی کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. مولا حسین نے نانا جان کے روزے کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا میرے نانا, میرے دوست نے دوستی کا حق ادا کر دیا. میرا دوست بوڑھا ضرور تھا مگر جوانوں پر سبقت لے گیا ہے, اس نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے. یا رسول اللہ میں حبیب ابن مظاہر سے بے حد راضی ہوں, آقا آپ بھی راضی ہو جائیے. اللہ اکبر. یہ حبیب ابن مظاہر ہیں, جام شہادت نوش کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کربلا ہے میرے عزیزو. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اور بڑی خوبصورت بات کہی, یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہ کربلا ہے, یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو, یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں.